हाय फ्रेंड्स। ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया था एंड उसी के कंटिन्यूशन में हम फर्दर क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है अ सीवर पाइप कंटेन्स 1 mm सैंड पार्टिकल्स, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है 2.65, ओके, एंड 5 mm की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.2। हमें ये पता है कि मिनिमम जो वेलोसिटी होती है, मिनिमम वेलोसिटी, सेटलिंग वेलोसिटी इज़ 0.45 मीटर पर सेकेंड। इसमें यही पूछा है, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड इट इज़ 0.45। और अगर हमें एवरेज पूछ लिया, एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है सीवरेज में? एवरेज वेलोसिटी इट इज़ 0.9 मीटर पर सेकेंड। बट हमें क्या पूछा है? मिनिमम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the maximum depth of the sedimentation tank. So I repeat question, it is option D, 6 meter. During the water purification, which of the following process reduce the net electrical repulsive force? So क्या reduce करता है, कौन सा? It is option A, जब हम coagulants ऐड करते हैं, so coagulation से हमारा net electric repulsive force reduce होता है. Next, velocity of flow in sedimentation tank should not exceed, so it should not exceed by how much? Option C, 5 mm per second. इससे exceed नहीं होना चाहिए, okay. Next, coagulation is to be adopted when the turbidity of water exceed. coagulation हम कब करते हैं? coagulation is adopted when turbidity of water exceed how much? So option A is 20, 30, 40 or 50. So जब 40 ppm से ज़्यादा होगा उस टाइम पे हम coagulation अडॉप्ट करेंगे. नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडरेशन स्लो सैंड फिल्टर आर बेटर देन रैपिड सैंड फिल्टर्स फॉर प्यूरिफिकेशन? ओके, सो इसमें से कौन सा क्राइटेरिया है जहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर बेटर होता है? सो कौन सी कंडीशन में बेटर होता है? इट इज़ फॉर, so is it construction, compactness, flexibility, rate of filtration? So rate of filtration तो obvious सी बात नहीं है. So construction point of view से देखें तो it is easy. Economy and construction slow sand filter की better होती है. Now the ratio of total area of orifice to the filter area served in the rapid sand filter. So कितना होता है orifice का area? It is 0.15 to 5%. ये रैपिड सैंड फिल्टर्स में होते हैं. नेक्स्ट, बल्किंग रेफर्स टू हैविंग अ रेशियो ऑफ, ओके, सो F/m इज़ फूड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो इसका जो रेशियो होता है दैट इज़ F/m इज़ लेस देन 0.3D. ओके, सो बल्किंग स्लज की हम बात करते हैं. व्हाट इज़ बल्किंग? So bulking said to occurred when activated sludge plant when the sludge does not settle easily. Settling नहीं होगी, buckling होगी, volume increase होगा. Okay. So buckling of sludge में कितना होता है? 0.3 per day. Next, treatment of water in contract beds, trickling filter, oxidation ponds are. So option A aerobic decomposition, option B breaking point, anaerobic, non-pathogenic. So trickling filters की बात हो रही है, oxidation pond, it is a aerobic decomposition. Okay. Next, uniform coefficient is best filter media should be. So कितना filter media? D6, uniform coefficient D60/D10, ये तो given ही है. Best filter media should be option C, 2. Next is standard rate of filtration in the slow sand filter. So it is, unit हमें ध्यान देनी है, लीटर पर, it is 100 to 200.
वैसे क्या होता है 100 से 200 ओके, सो लीटर पर आर पर मीटर स्क्वायर ये होता है. नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ एल्गे इन वाटर बॉडी टेंड्स टू इंक्रीज विद द लैटर्स. कैसे इंक्रीज करती है? विद लैटर्स एल्किनिटी. एल्किनिटी बढ़ेगी तो हमारा ग्रोथ ऑफ एल्गे भी बढ़ेगा. नेक्स्ट, हायर द टर्बिडिटी इन वाटर सप्लाई इज ऑब्जेक्शनेबल बिकॉज. वाई इट इज ऑब्जेक्शनेबल? Options are: consumer prefer less turbid water when theory may be unsafe. No. It results in inconstriction in pipe and clogs. Maybe. It encourages aftergrowth of bacteria distribution system. So ये ज़्यादा suitable है कि हाई टर्बिडिटी क्यों ऑब्जेक्शनेबल होता है? बिकॉज बैक्टीरिया ग्रोथ के चांसेस होते हैं, दैट्स वाई. नेक्स्ट, एयर क्लीनिंग डिवाइस विच रिमूव स्मॉलेस्ट पार्टिकल. सो क्या होता है एयर क्लीनिंग डिवाइस विच रिमूव स्मॉलेस्ट पार्टिकल? ये सारे ही एयर क्लीनिंग डिवाइसेस हैं. सो ऑप्शन ए इज़ electrostatic precipitators. Okay, option B is fabric filters, web scrubbers and cyclone scrubbers, cyclone collectors. So जो smallest particle remove करता है that is a fabric filter. Okay, electronic precipitator भी करता है but smallest particle की बात हो रही है then it is a fabric filter. Okay. Next, in water treatment, rapid gravity filters are adopted to remove. So ये क्या remove करता है? So option A, dissolve organic substance. Option B, dissolve solid gases. Option C, bacteria and colloidal solids. Yes, ये bacteria and colloidal solids remove करता है. What? Rapid gravity filters. Okay. Next, the particle around 1 micron size is best removed by. So 1 micron size की बात हो रही है. So कौन remove करता है best? It can be removed by filtration. So it can be removed by option A, filtration. Okay. Next, रैपिड सैंड फिल्टर द डेप्थ ऑफ द टैंक वेरीज. सो कितना होता है डेप्थ ऑफ द टैंक? डेप्थ ऑफ द टैंक इज़ 2.5 to 3.5. ओके, इसके कुछ और फर्दर पॉइंट्स भी हैं. सो हमने प्रीवियस देखा था कि रैपिड सैंड फिल्टर यूज टू रिमूव बैक्टीरिया एंड कोलॉइडल पार्टिकल्स एंड इसकी डेप्थ हमारी 2.5 to 3.5 होती है. एरिया इफ़ यू टॉक अबाउट, एरिया इज़ 20 to 50 मीटर स्क्वायर. ओके, डेप्थ इज़ 2.5 to 4. एंड इफ ये तो रैपिड सैंड फिल्टर के लिए हो गया ये वाला. एंड स्लो सैंड फिल्टर की भी डेप्थ ऑलमोस्ट इतनी ही होती है बट एरिया इज़ मोर. सो दिस इज़ फॉर रैपिड सैंड फिल्टर एंड एरिया अगर हमारा 50 to 1000 मीटर स्क्वायर इट इज़ अ स्लो सैंड फिल्टर. ओके, next is the maximum spacing of laterals in rapid sand filter. So what is the maximum spacing? It is 30 centimeters. इतनी तो रहती ही है. And what else? अगर हम इसमें कुछ further points हैं, ratio of length to the diameter of lateral. lateral में ही so अगर
length of lateral to diameter of lateral. Dia of lateral. So इसका जो रेशो होता है, it should not be more than, so it should be less than 60. Okay. Now the spacing of lateral, spacing तो हमने देख लिया है, मैक्सिमम 30 होता है, और ये जो रेंज होती है इसकी 15 to 30 सेंटीमीटर होती है स्पेसिंग की. ओके. नाउ द रेशियो ऑफ टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन टू एंटायर फिल्टर एरिया. ओके. एरिया ऑफ perforation filter area, entire whole filter area. Entire filter area. So ये जो रेशो है, ये रेशो पूछा जाता है कई बार. So it is 0.003. Okay. एंड स्पेसिंग का जो वेरिएशन है यहाँ लिख लेते हैं. स्पेसिंग ऑफ परफोरेशन, यहाँ पे तो लेटरल की स्पेसिंग बात हो रही है, बट परफोरेशन की भी स्पेसिंग होती है, एंड ये डायमीटर पे डिपेंड करती है. मतलब फॉर 5 mm डायमीटर स्पेसिंग इज़ 50 mm और 80 mm. 5 mm डाया है, सो स्पेसिंग इज़ 80 mm. ओके. एंड अगर डाया इज़ 12 mm डाया, स्पेसिंग इज़ 200 mm, अप टू 200 mm तक हो जाता है. दिस इज़ फॉर परफोरेशन. ओके. कंडीशंस किसके लिए? परफोरेशन के लिए. परफोरेशंस के लिए कंडीशन है स्पेसिंग की. लेटरल्स की तो हमें पता चल गई है. नेक्स्ट, डिज़ाइन पीरियड ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एज सजेस्टेड बाय CPHEO. सो ये फैक्चुअल है. कितना होता है डिज़ाइन पीरियड स्लो सैंड फिल्टर के लिए? इट इज़ फॉर 10 years. नाउ नेक्स्ट, स्लो सैंड फिल्टर रिक्वायर्स फाइनर सैंड. फाइनर सैंड क्योंकि अगर उसमें कोर्स सैंड होगा, इसके जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग होने के चांसेस होंगे फिर. ओके. स्लो सैंड फिल्टर जो इफ़ेक्टिव D10 है, इफ़ेक्टिव साइज़ बोलते हैं इसको D10. ये कितना होता है? 0.2 mm to 0.3 mm. नेक्स्ट, एयर बाइंडिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर इज़ एनकाउंटर्ड when it is encountered when there is an excessive negative head. सो एयर बाइंडिंग पहली बात तो रैपिड सैंड फिल्टर में होगा, यानी किसकी वजह से होता है? जब देयर इज़ एन एक्सेसिव नेगेटिव हेड, सो एयर बाइंडिंग की प्रॉब्लम आएगी. नेक्स्ट, what is a predominant coagulation mechanism of raw water having a high turbidity and high alkalinity? So option A, ionic clear compression. Option B, adsorption of charge neutralization. Option C, sweep coagulation. Option D, interparticle bridging. So high turbidity, high alkalinity की हम बात कर रहे हैं, so addition of coagulant से ही होगा. So higher coagulant dose used to ensure the sweep coagulation. Higher turbidity, higher coagulation, जिससे sweep coagulation. Next is, which of the following is incorrect? Okay, which of the following is incorrect slow sand filter में? So first is, incoming water should not be treated by coagulants. So it is true, वो डायरेक्ट आता है. सेकेंड, डेप्थ ऑफ वाटर शुड बी डबल द डेप्थ ऑफ फिल्टर सैंड. ऐसा कुछ नहीं होता, इट इज़ रॉन्ग.
सो इनकरेक्ट पूछा है, सो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. ओके, इसमें क्या, डेप्थ ऑफ वाटर शुड बी डबल द डेप्थ ऑफ फिल्टर सैंड. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. डेप्थ ऑफ सैंड हमारा कितना हो जाएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली सेम ही होता है वैसे. सो हम कह सकते, सो वी कैन राइट डेप्थ ऑफ सैंड. पहली बात तो ये 90 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर्स होता है, अराउंड 1 मीटर. ओके, एंड डेप्थ ऑफ वाटर ओवर सैंड मीडियम के ऊपर होता है, इट इज़ ऑल्सो 1 मीटर. सो ऑलमोस्ट सेम होता है. एंड जो डेप्थ ऑफ ग्रेवल होती है, जो सबसे बॉटम में होती है ग्रेवल, सबसे नीचे ग्रेवल ही होती है, उसकी लेयर कितनी होती है, 30 to 60 सेंटीमीटर. तो पहले ग्रेवल होगा, फिर सैंड होगा, आफ्टर दैट वाटर इन स्लो सैंड फिल्टर. नेक्स्ट, फिल्टरिंग मीडिया ऑफ स्टोन ब्लास्ट और ब्रिक ब्लास्ट इज यूज्ड इन, सो वेयर इट इज़ यूज, फिल्टरिंग मीडिया कॉन्टैक्ट बेड्स में ही होते हैं यूज़. ओके, स्टोन ब्लास्ट और ब्रिक ब्लास्ट हम कॉन्टैक्ट बेड्स में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, इन क्लैरिफॉकेटर यूनिट यूज फॉर वाटर ट्रीटमेंट द प्रोसेस इन्वॉल्व इज़. क्लैरिफॉकेटर में क्या प्रोसेस होता है, फ्लॉक्स फॉर्मेशन एंड इट्स सब्सट्यूएंट रिमूवल बाय सेडिमेंटेशन. यस, ऑप्शन ए. फ्लॉक्स भी फॉर्म होंगे एंड रिमूवल ऑफ सेडिमेंटेशन भी होगा. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, the area required in meter square of rapid sand filter bed rate of filtration is given 5 cubic per hour for a town having a population 5000 with an average water demand is 200 liter day per head. What assume that the filter bed utilized for 24 hour per day. सो इसमें क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिख लेते हैं. मैक्सिमम डेली डिमांड, व्हाट इज़ अ मैक्सिमम डेली डिमांड, 5000 50,000 तो दे आर नंबर ऑफ पीपल एंड 200 लीटर पर डे पर हेड है. सो लीटर पर डे ये हो गया. ओके, so hourly demand is 50,000 into 200 upon 24 into, so ये कितना आ जाएगा, मीटर क्यूब पर आवर में चेंज हो गया. पर डे था ना, ये 24 से 24 हुआ है ना, सो इसको मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, एंड यस, ओके. नाउ मैक्सिमम, अब हमें ही पता है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स आवरली डिमांड. सो आवरली डिमांड हमने कैलकुलेट कर दिया. सो 1.5 इंटू 416 इज इक्वल्स टू 624 मीटर क्यूब पर आवर. ओके, सो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं. एरिया ऑफ फिल्टर, मैक्सिमम आवरली डिमांड अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन सारी चीज़ हमने कैलकुलेट कर ली है. रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज़ हाउ मच, हमें गिवन है 5, बस कैलकुलेट करो. सो ये कितना आ जाएगा,
124 around 125 मीटर क्यूब. ओके, फॉर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए सही हो गया. ओके, ये एवरेज वाटर डिमांड दिया था, इसको हमें मैक्सिमम में चेंज करना है, हेड से मल्टीप्लाई कर दिया. एक दिन के लिए दिया हुआ था यहाँ पे, तो उससे हमने मल्टीप्लाई करा एंड सो नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेसिक फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म? सो इंटरसेप्शन, ब्राउनिन डिफ्यूजन, तो वी नो दैट. इंटरजेक्शन, इनर्शिया, सो इंटरजेक्शन नहीं होता है, बाकी 3 होता है. नेक्स्ट, इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, सो कांस्टेंट फैक्टर तो नहीं है. इट जस्ट चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद लोकेशन, इट चेंजेस विद बोथ टाइम एंड लोकेशन. ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, ओके, हाइड्रोलिक लोडिंग फॉर हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर वेरीज बिटवीन. सो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की हम बात करते हैं, सो इसका ये चार्ट हमें लर्न करना है. लो रेट के लिए भी है एंड इट इज़ फॉर हाई रेट ऑल्सो. सो हाइड्रोलिक लोडिंग रेट हमें क्वेश्चन में किसके लिए पूछा है? हाई रेट के लिए पूछा है. सो हाई रेट इट इज़ 10 to 40, बट यूनिट देखो यहाँ पे कितनी है? मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर पर डे. एंड हमें क्वेश्चन में ये क्या है? ml पर हेक्टर पर डे. सो इसके अकॉर्डिंग कन्वर्जन करेंगे, सो ऑप्शन ए सही हो जाएगा. सो यूनिट का हमें ध्यान रखना है. ऑर्गेनिक लोडिंग लोड भी पूछ सकता है, तो लो रेट के लिए